Dear students of class 12 entrepreneurship, good morning to all of you. Our today's topic is to study one of the techniques of network analysis. Before this topic, we have learned network analysis. This network analysis consists of so many techniques such as PERT, number one, that is Program Evaluation Review Technique or Project Evaluation Review Technique. Number two, CPM, that is Critical Path Method. Number third technique is GERT, that is Graphical Evaluation and Review Technique. Number four, Workshop Analysis Scheduling Program, WASP. And last one is Line of Balance, that is LOB. But the mostly popular techniques of network analysis are: number one, PERT, PERT, that is Program Evaluation Review Technique, and number two, CPM, that is Critical Path Method. Today we can only discuss one technique, that is PERT, and in my next lecture I will explain the second one, that is CPM. So far as this technique, that is PERT, is concerned, it stands for Program Evaluation Review Technique, or sometimes it will be given in a multiple choice question. There must be on the only option, that is Project Evaluation Review Technique. At that time we can write Project Evaluation Review Technique. But the familiar and the popular name for this PERT is Program Evaluation Review Technique. In 1958, PERT was developed by a team of engineers of US Navy working on missile project. Actually, this PERT was developed for US Navy in 1950s. But in 1958, it had been given the actual shape by the team of engineers of US Navy who were working on missile project for completion of missile project, and they successfully developed it. It became later on very much popular. PERT has become very popular technique used for project planning and control. It is mostly used in project planning and control. It schedules the sequence of activities. Actually, I have already explained in my previous lecture that the network analysis itself depends upon the activities. These activities are being scheduled by this PERT in a systematic manner, in an arranged order, or a sequence of activities or a relationship of sequence. This is scheduled. It schedules the sequence of activities in such a way that the project can be completed within a shortest possible time. That means we can achieve the target, we can complete the project at the due course of time or before the due course of time. It is a tool that shows the project as network diagram. Network diagram
थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल के लिए बना के रखा है। तो इस शेप में ये शो किया जाता है। एक टूल है ये दैट शोज द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस करता है डायग्राम की शेप में, नेटवर्क डायग्राम की शेप में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डायग्राम। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। It helps to reduce both time and cost of the project. Time and cost reduce करता है, यानी कि जहां पे हमें टाइम ज़्यादा लगता है नेटवर्क एनालिसिस या PERT की हेल्प से हमें वहां पर टाइम कम लगता है, और जहां पर कॉस्ट ज़्यादा लगता है वो कॉस्ट भी कम लगता है विद द हेल्प ऑफ दिस PERT। यानी ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है या प्रोग्राम इवैल्यूएशन है। प्रोजेक्ट बनाने का प्रोग्राम जो है उसको इवैल्यूएट करता है या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करता है। तो क्या हेल्प करता है ये में? कॉस्ट और टाइम मिनिमाइज करता है। द टोटल टाइम ऑफ कंप्लीशन was reduced from 7 years to 5 years with the help of PERT. The total time of completion was reduced from 7 years to 5 years with the help of PERT. That means 7 to 5, it is the gap of 2 years. 2 years time has been saved with the help of this PERT. This is what we understand by the term PERT. And now let's learn the steps involved in PERT. There are so many steps involved in PERT. It can be, the project can be completed step by step. PERT has arranged it in a systematic order. Number 1, identify the specific activities. सबसे पहले हमें एक्टिविटीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्या काम करना है हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है। नंबर 2, डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्टिविटीज इन ऑर्डर। कौन सी एक्टिविटी किस टाइम करनी है, पहले कौन सी एक्टिविटी, उसके बाद फिर उसके बाद। तो ऐसे ही इन अ हैफेजर्ड मैनर हम एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एज पर PERT वी हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर और मैनर। नंबर 3, एस्टिमेट, दिस इज द थर्ड स्टेप, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। हमें हर एक एक्टिविटी के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें एस्टिमेट करना है टाइम, उसका अंदाज़ा लगाना है, हमें ये प्रिडिक्ट करना है हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो ये एस्टिमेशन करके रखनी है पहले ही। नंबर 4, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ड्यूरेशन क्या लगेगी, टाइम क्या लगेगा, वो हमें वी हैव टू सर्च फॉर इट। नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम। उसके बाद नेटवर्क डायग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। नेटवर्क डायग्राम एक मैप है जिस मैप पर चलते चलते हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस बिकम्स द इजी वे टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वेल इन टाइम। नंबर 6, probability of project completion at due date is calculated. उसके बाद एक चांस हमें मिलता है, हमें एक चांस देखना है कि कब ये कंप्लीट करना, उसके लिए एक टाइम कैलकुलेशन करनी है। तो अब एक एग्जांपल है हमारे पास, प्रोजेक्ट समझो ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का हमें डायग्राम बनाना है। कंस्ट्रक्ट एन एरो डायग्राम। कंस्ट्रक्ट एन एरो डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक जॉब आइडेंटिफिकेशन है, यानी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो रही हैं ABCDE। ए एक्टिविटी BCDOE। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस तरह हम पर्टिकुलर्स आइटम्स लिखते हैं अकाउंट में,
तो नंबर 1 है हमें फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स। ए एक्टिविटी क्या है? फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स। हमें एस्टिमेट करना है कि सेल्स कितनी होंगी। एक्टिविटी कहाँ है? 1 to 2 और टाइम रिक्वायर्ड 10 days। आप देखिए पहली एक्टिविटी हमारे पास ए एक्टिविटी है, ये 1 to 2, यानी ये सर्कल जो है इनको हम नोड्स भी कहते हैं। तो इन नोड्स के जरिए और यहाँ पर एरोज जो है ये एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी ए है, ये कहां से कहां जाती है? 1 from 1 to 2। एक्टिविटी 1 to 2 ए है, यहाँ पर आइडेंटिफाई की हुई है एक्टिविटी। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है 10 days। और ये कौन सी एक्टिविटी है? फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स। हो गई। ये एक डायग्राम हमें दिखाता है कि नंबर 1 हमें जरूरी नहीं है ये मेंशन करना है कि इसका ये डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन एक्टिविटी ए है, 10 days ड्यूरेशन दी गई है इसको। 1 to 2, ये एक्टिविटी 1 to 2 जाती है ये। और ये जो 1 to 2 जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड पाथ, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है जब हमने नेटवर्क एनालिसिस में ये डायग्राम की, एरो डायग्राम की एग्जांपल दी थी। ये पाथ है वहां पर। तो ये जो हम सीपीएम में भी पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 to 4, ये 2 to 4 कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी बी जाती है 2 to 4, सेल्स प्राइसिंग। उसके बाद प्राइसिंग यहाँ पर टाइटल है हमारा। तो एक्टिविटी बी में हमें प्राइसिंग ये परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। तो 2 to 4, 2 to 3 नहीं जाती है, ये पाथ इसकी है, इसके लिए पाथ है 2 to 4। ये एरो जो यहाँ पर दिखा रही है एक्टिविटी बी, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है 8 days टारगेट। तो 8 days में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी में हमें देखना है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। हमें शेड्यूल बनाना है प्रोडक्शन का, यानी पैदावार जो प्रोड्यूस करने हैं गुड्स हमें। तो वो 2 to 3 जाती है पाथ। इस पाथ से 2 to 3 सी एक्टिविटी है, 9 days ड्यूरेशन दिया गया है इसको। उसके बाद डी, एक्टिविटी डी, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। बात कौन सी है? 3 to 4। 3 to 4, ये देखिए फ्रॉम 3 to 4 डी एक्टिविटी 7 days इसके लिए ड्यूरेशन है। और एक्टिविटी नेम है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। और ई, उसके लिए डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिपरेशन। हमें प्रिपरेशन करनी है अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन की। तो पाथ क्या है? 4 to 5 एक्टिविटी जा रही है, 4 to 5। ये एरो के जरिए हमें पता चलता है किस नोड से किस नोड तक। तो ई है एक्टिविटी का नाम, ई एक्टिविटी, उसमें डिस्क्रिप्शन है, प्रिपरेशन करनी है हमें, 12 days प्रिपरेशन के लिए ड्यूरेशन है। तो ये है जो हमारे पास प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को हमने एरो डायग्राम बना दिया है इस प्रोजेक्ट का। इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए होंगे और हमें उनको सॉल्व करना है इस तरीके से, जिस तरह यहाँ पे हमने एरो डायग्राम बनाया। तो ये है रहा आपका पर्ट का ये सॉल्यूशन। और इसमें ओनली पर्ट नहीं, पर्ट की मीनिंग है और स्टेप्स इन्वॉल्व इन पर्ट। उसके बाद एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ऑफ एरो डायग्राम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा सीपीएम। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।